नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल बातें भी एकदम आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके। स्टॉक मार्केट इज द मोस्ट पॉपुलर फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं वो दो पर्पस फुलफिल करते हैं। फर्स्ट पर्पस, दे हेल्प कॉर्पोरेशंस रेज कैपिटल फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। Second purpose, they help traders to earn profits from their investments. स्कूल में बेसिक बायोलॉजी में सबने पढ़ा है कि नेचर में दो ऑर्गेनिजम्स के बीच आइडियल रिलेशनशिप सिम्बियोटिक होता है। इन अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, both the organisms benefit from dealing with each other. At its best, this is how the stock market works as well. Through the stock market, corporations essentially crowdfund their future growth and expansion. Investors, both the retail and institutional type, get to benefit from their insights into market forces. As an investor, you must find out which stock is right for you. स्टॉक मार्केट में दो तरीके के स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं. These two types of stocks are preferred stocks and common stocks. Let's understand them individually first and then we will compare and contrast their differences. अगर आप कॉमन स्टॉक्स खरीदते हैं तो आपको कंपनी में वोटिंग राइट्स मिलते हैं. You can use your voting rights to determine what direction the company takes in the future. You can also participate in the process of electing the board members of the company. Buying a stock of the company, you become a stakeholder who owns a part of the company. Because of this, board members will pay out dividends to you from the company's profits. These dividends will vary and you are not guaranteed to receive them every year. If you buy a preferred stock, then you do not get voting rights in the company. कंपनी को एक नई सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए या नहीं, कंपनी को नया मार्केट एंटर करना चाहिए या नहीं, कंपनी को अपने हायरिंग प्रैक्टिसेस बदलने चाहिए या नहीं, वोटिंग ऑन ऑल सच इश्यूज एंड मोर is denied to preferred stockholders. अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये स्टॉक खरीदने के बाद भी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते तो ऐसे स्टॉक्स लेने का क्या फायदा? द आंसर टू दैट इज दैट देयर आर डेफिनेट बेनिफिट्स टू बीइंग अ प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर. नंबर 1, preferred stockholders are guaranteed a fixed dividend every year. Contrast this with common stockholders who are not guaranteed a fixed dividend. There is no guarantee even that they will even receive a dividend every year, but a preferred stockholder has that reassurance. Number 2, preferred stockholders also get the better end of the deal if the company goes bankrupt and liquidates its assets. A company's creditors, bondholders, and preferred stockholders are given preference if the company goes out of business. Their entitlements are settled first before that of common stockholders. Preferred stocks often have a unique feature. They may be callable. Callable stocks are bought back by a company from the stockholder at a premium. इफेक्टिवली इसका ये मतलब हुआ कि प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स मार्केट प्राइस से हायर प्राइस में अपने स्टॉक्स कंपनी को वापस भी बेच सकते हैं. देयर आर सम अदर फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टॉक्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर. एक ऐसा फैक्टर है मार्केट कैपिटलाइजेशन. मार्केट कैप ऑफ अ कंपनी इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द मार्केट प्राइस ऑफ इट्स स्टॉक बाय द टोटल नंबर ऑफ इशूड स्टॉक्स. जिन कंपनीज का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है उन कंपनीज के स्टॉक को लार्ज कैप स्टॉक्स बोलते हैं. लार्ज कैप स्टॉक्स का ग्रोथ स्टेबल होता है. देयरफॉर these stocks can be trusted to give moderate returns over time. Companies with market cap between 5,000 to 20,000 crore issue mid cap stocks. जिन कंपनीज का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है ये कंपनीज स्मॉल कैप इशू करती हैं. स्मॉल कैप स्टॉक्स प्रोवाइड द पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न्स, बट स्मॉल कैप स्टॉक्स वॉलेटाइल भी होते हैं. इसीलिए स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीदने के वक्त आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम खेलते हैं. Stocks can also be differentiated from each other on the basis of the location in which the company operates. For example, if a company operates out of a foreign location, then its stocks can be considered foreign stocks. आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ फॉरेन स्टॉक्स रखकर अपने होल्डिंग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. Diversified portfolios are less at risk from market swings. Stocks can also be classified on the basis of the sector in which the company operates. जो कंपनीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, प्रोप्राइटरी सीड्स एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर कर रही हैं उन कंपनीज के स्टॉक्स को एग्रो स्टॉक्स बोला जाता है. मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में एग्री स्टॉक्स का परसेंटेज हाई है. कल को अगर देश में एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस होता है तो आपके होल्डिंग्स ज्यादा वल्नरेबल होंगे. नाउ बाय बाइंग स्टॉक्स ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग इन द सर्विस सेक्टर यू कैन इंप्रूव द रिस्क प्रोफाइल ऑफ योर पोर्टफोलियो. Ultimately, there are as many types of stocks in the market as there are companies. While companies can be grouped in terms of sector, location, and market cap, they are unique at the end of the day. They will all provide different returns. Therefore, an investor must also be an investigator.
आपको कोई भी स्टॉक लेने से पहले उसकी निटी ग्रिटीज को ठीक से इन्वेस्टिगेट करना है। कोई भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसके जनरल और स्पेसिफिक फीचर्स को समझना है। ओनली आफ्टर दैट मस्ट यू पुट डाउन योर ओन मनी फॉर द स्टॉक। इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखें एंड स्टे बुलिश।